ਭਰਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਰਨ ਹੈ ਆਪਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਹਟਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੰਨ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਬਾਹਲਾ ਭੈੜਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਕਰੋ, ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਾੜੀ, ਦਾਰੂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਬਾਹਲਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 2-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਟਾ। ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰੋ, ਚਿੱਟਾ ਨਾ ਪੀਆ। ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜਿੱਦੇ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਤਕੀ ਹੁਣ ਸਿਆਲ 'ਚ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਖਸਖਸ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿਆ ਜੀ, ਖਸਖਸ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਪਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਝੋਨਾ ਨਰਮਾ ਆਪਾਂ ਖਸਖਸ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਖਸਖਸ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਖਾ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਫੀਮ ਖਾ ਕੇ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ? 100-100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਲੈਣਾ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੁੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਖਸਖਸ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ ਖਾਲਿਆਂ ਖੂਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੰਦਾ ਚੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਖਸਖਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆ ਰੇਸ਼ਾ ਰੂਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਖਸਖਸ ਖਾ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੋੜ ਖਸਖਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੋਸਟ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਤ ਪੰਤ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਖੇਤ ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਕਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। और जिला कलैक्टर या कोई भी मजिस्ट्रेट, एसडीएम या तहसीलदार का कोई आदेश नहीं सीगा। सिर्फ तो सिर्फ इत्थों का सीआई है हनुमानगढ़ जंक्शन का, काफ़ी टाइम की कब्जी सी ਉਹਦੇ। ਉਹ कब्जी निकालने खातर ਆਪਾਂ शांति प्रिय अंदोलन करिया, नहीं तो कब्जी निकाल सकते सी। किन्ने लोग सी ये, क्योंकि आप उस गुरुआं दे गुरु गोबिंद सिंह जी अगर दुश्मन ते वार करता सी ना, अगर दुश्मन घायल हो जाता सी तो तीर दे नाल सोना ला के तीर मारदा सी कि आपदा इलाज करा ले। अगर वो अंतिम संस्कार करने खातर अगर वो सुरगवास हो गया तो वो सोना वो अंतिम संस्कार का काम आता। असी उस गुरु दे वारस है, इस कारण मुकाबला नहीं करिया। सुन रहे साथी, मुकाबला कर सकते सी, पर साडी मंग सीगी कि सरकार जो कानून बनया MSP समर्थन मूल्य उस भाव से सरकार धान खरीदी। ये घटना धान ते नहीं कणक ते भी हुई। कणक की खरीद शुरू हुई और असी मंडी समिति सैकटरी नूं, मैं साथी ओम साथी होर भी साथी सी, मान साहब भी, असी जाके बात करी CL वर्मे नूं कि व्यापारी कणक बेच रहा लिया के और किसान की कणक दे तोल नहीं लग रहा सी। हनुमानगढ़ जंक्शन की सीजन की गल है। उस टाइम लठ लैके ने खाकी वर्दी वाले उन्होंने रोक दे कि पहला किसान का कणक विकूगी, उस तो बाद व्यापारी की विकूगी। MSP के रेट से व्यापारी का तोल लग रहा सीगा और ट्रालियां लगातार कटेवा पेट्रोल पंप के कोले कंडे ते लैना लगियां होंदियां सी। बात करी असी बात करी कि वो ट्रालियां नूं रोको, वो पंजाब और हरियाणे तो व्यापारी खरीद के इलाहाबाद तो और दूर दराज तो लिया के इत्थे माल कणक सरकार नूं दे रहा, व्यापारी फायदा चक रहा है, किसान नूं नहीं मिल रहा, किसान का इनाज रुल रहा है। तो सानू वो सैकटरी की कहंदा मंडी का
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ, ਸਬੂਤ ਦਿਓ। सबूत दिता, ट्रालियां फड़ियां, सारी रात रोकियां, मैं और वो साथी ओम सारी रात ट्रालियां दे पहरे ते पहरे और मूसे का कीना कांदा अंदर गड्डी लेके गया मूसे का। हुणे साथी कहने मैनू आदा काका तैनू पता नहीं गलदा, तो मनप्रीत कहना भी काका नहीं साडा सरपंच है। ये रात नूं इहनूं आपां काके दीदे हैं, पर काकिਆਂ ਨਾਲ जिस दिन मुकाबला हो गया ना उस दिन देख लो अगे तुसी होंगे तो पिछे काके होंगे, वो मुकाबला करना पड़ेगा। इस कारण वो ट्रालियां सारी रात खड़ियां रही, सारी रात रोकियां, पुलिस गड्डी घुमा के आ गई। दोबारा फिर गया एक मोटा थानेदार, बहुत मोटा तकड़ा सी। मैं क्या करूँगा फैसला, जरूर व्यापारी ने बुलाऊगा, किहदा ट्रैक्टर है फैसला दूगा। पर वो भी हो क्योंकि व्यापारी ना पहला इन्हां दी साठ गांठ हो जाती है, घरे पैसे आ जाते जेब च पहला ही, तो उतों वो भी गेड़ा कट के फिर तहसीलदार साहब गए, क्वालिटी इंस्पैक्टर बुलाया, फिर वो खरीद सही सुचारू रूप ना खान चालू हुई। हुण बात रही धान दे खरीद दी। धान दे खरीद दी जो गल है कि आपां दबाव बनाया, सारे इलाके च दबाव बनया, हरियाणे और पंजाब च खरीद शुरू हो गई। हनुमानगढ़ दा बेल्ट जो गग्गर बेल्ट है उत्थे अनाज धान पैदा हुंदा है, उसकी खरीद पहले भी शुरू खरीद कर दी सी एफसी, हुण खरीद नहीं कर रही। और घोषणा करती, आदेश देता कि जी घोषणा होगी, सरकार ने धान खरीद लिया, चालू करता। साडे मंत्री साहब पूर्व और MP साहब व्यापारी माड़ा पाउंदे फिरदे, क्यों पाउंदे फिरदे सीगे? क्योंकि वो कणक वाली हालात करनी चाहुंदे है। जिस तरह कणक आई सी ना ट्रालियां, उस तरह ये धान खरीद के 1 नवंबर ਨੂੰ खरीद शुरू करने का तां ही मनसा बनाई है। इस कारण साथियों माला पवा ली उन्होंने, क्या जी खरीद चालू कराती। और उस तो और एडिशनल साहब दोनों ज़िले के बड़े अफसर वहाँ मौजूद थे कि हमने जब उनके सामने 2 मांगें रखी थी कि भाई हमारी जो फसल है उसकी खरीद जल्द से जल्द शुरू हो और जो SHO हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। उन्होंने हमारे को कहा कि भी 7 दिन के लिए 7 दिन का टाइम दे करके जांच कमेटी हम बनाएंगे और 7 दिन का समय है, 7 दिन के अंदर जांच करके और कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये बात है 7 तारीख की। 8 तारीख के अखबार में हमने सबने पढ़ा कि SHO साहब को छुट्टी भेज दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। 7 तारीख से लेकर के आज तारीख 13 है, 6 दिन हो चुके हैं। यहाँ सभी लोग बैठे हैं, मेरे को ये बताएं कि प्रशासनिक जो भी अधिकारी जांच अधिकारी बनाए गए उन्होंने कितने लोगों के बयान लिए, उन्होंने कौन कहाँ कब जा कर के उन्होंने मौका नक्शा बनाया, उन्होंने क्या कार्रवाई करी। दिन एक बचा है, कल 7 दिन पूरे हो जाएंगे 14 तारीख को। 6 दिन से यहाँ इतने साथी बैठे हैं, किसी के बयान लिए? कोई मौका नक्शा बनाया? कोई मौका नक्शा बनाया? तो फिर 7 दिन में क्या सभी पूरी जांच आज एक रात में पूरी हो जाएगी और सुबह उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे? ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा मुद्दा है ये भी। क्योंकि प्रशासन, हम बार बार ये कह रहे हैं, प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो अपनी कई बातों से बार बार मुकर रहे हैं। जिस तरह से मैडम ने, हमारे ADM मैडम ने कहा था कि जो आपका धान यहाँ कलेक्ट्रेट पे आप लेके आए हुए हो, संडे या सोमवार तक इसकी खरीद शुरू कर देंगे। उसके बाद में आधे 1 घंटे बाद में तहसीलदार साहब के साथ में मंडी समिति के सेक्रेटरी वो आए, उन्होंने कहा जी 1 हफ्ता या 10 दिन लगेंगे। उसके बाद में शाम को कलेक्टर साहब का स्टेटमेंट आ जाता है कि धान की सरकारी खरीद नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू की जाएगी। कहीं ना कहीं जो ये 7 दिन का जो टाइम दिया गया था, ये भी लगातार जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार किसानों को और मजदूरों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं की जाती है। और बहुत से माध्यम हैं, उनके उन वीडियोग्राफी में फ़ोटोज़ के अंदर जो भी लोग होते हैं उन लोगों का बयान लिए जाते हैं, उन लोगों से बात की जाती है जो भी संबंधित जांच अधिकारी होता है, लेकिन अभी तक ऐसा कहीं भी कुछ नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से ये भी जो जिस तरह से पहले 3 बार गुमराह करने का प्रयास किया गया 3 अधिकारियों के द्वारा, तो ये भी कहीं ना कहीं
इस बिंदु पर भी जो है वो गुमराह करने का प्रयास जो किया जा रहा है, इसको भी हमारे को ध्यान में रखना है। कल हम सब लोग इकट्ठा होंगे, अनशन पर भी बैठेंगे, सारे ही आगे का जो आंदोलनात्मक जो कदम है वो सारे उठाए जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर भी जो है वो हमारे को गौर रखना है। और हमारे जो साथी बैठे हैं, या रेशम सिंह बैठे हैं, मनप्रीत सराफ बैठे हैं, हमारे और भी साथी बैठे हैं, वो भी इस मुद्दे पर भी वो अपनी बात रखें। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਘਰਾਵ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਿਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ 6-7 ਦਿਨ ਖਾਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਆਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਐਂ ਨਾ ਸੋਚਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਥੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਥਾਣੇ 'ਚ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਐਂ ਘੇਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਸਪੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ पूरे हनुमानगढ़ के अंदर संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर जो 4 तारीख को घटनाक्रम हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, जो हमारी मांग थी एमएसपी पर खरीद और नरेश गेरा की यहाँ से रवानगी, और ये जो अपना चल रहा है क्या नाम, इसको लेकर आज इस कॉल पर अपने यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले नरेश गेरा का जो सवाल है उसकी चाबी मान साहब जी मैडम के हाथ में नहीं है, उसकी चाबी मान साहब के हाथ में है। हाँ, नरेश गेरा को जब चाहे संयुक्त मोर्चा ऐलान कर दे, किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं कि एसपी सस्पेंड करेगा या डीआईजी सस्पेंड करेगा। यहाँ के संयुक्त मोर्चा में ताकत है वो। अब ये कब इस्तेमाल करे ये इनके हाथ में, इसमें कहीं दो राय नहीं। हम देखेंगे। मेरा एक निवेदन है आपसे, उस वीडियो को आप दोबारा देखिए। वो जो वीडियो चल रहा है, इन्होंने टारगेट किया है, जो गेट से आगे निकले लोग निकल गए, तब लाठीचार्ज नहीं किया। लाठीचार्ज कहां पर किया है, बाद में किया, किन लोगों पर किया है और क्यों किया है, इसका जवाब हम देंगे। एक एक लाठी का हिसाब यहाँ की जनता करेगी। हमारा अनुभव रहा है, आपके तो ऊपर तो नियम और कायदे लागू होते हैं, जनता पे साहब कोई नियम और कोई कायदा लागू नहीं होता। जिस दिन धक्के चढ़ गए ना, उस दिन पता चलेगा। आप इनसे उम्मीद करते हो, ये मैं नहीं कह रहा, ये आज का भास्कर है, जिनसे अपन न्याय मांगने की बात लेकर आए हैं। आज के भास्कर में पत्रकार इनको बता रहे हैं। हालांकि मेरा मानना है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर कोई भी शराब माफिया, चिट्टे का माफिया, किसी भी प्रकार का आदमी यहाँ धंधा करेगा और यहाँ के बीट इंचार्ज को पता नहीं हो, यहाँ के सीआई को पता नहीं हो, यहाँ के एसआई को पता नहीं हो, संभव नहीं। 4 अक्टूबर को कि जो भाजपा आरएसएस ने किसान नरसंहार किया यूपी में और हनुमानगढ़ में धान की खरीद शुरू हो, जिला कलेक्ट्रेट पर किसानों ने प्रदर्शन रखा था। ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥਾ ਸਾਡਾ ਧਾਨ ਦੀ ਤਲਾਈ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਟੇ ਕੇ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਆਮ ਜਨ ਮੇ ਵਿਆਹ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਮੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, अपराधी तो थोड़े खुले तुरे फिरते, उन्होंने कार्रवाइयां नहीं होंदियां अंदर भागे। क्योंकि कुछ हम लेट भी पहुंचे यहाँ, तो साथियों अभी 2 वक्ता हमारे, स्पेशली मैं बात करूं संदीप कंग और शेर सिंह जी जो बोल के गए, वो बड़ी सोचने वाली बात है। अपने हेलमेट नहीं लगा के जाते तो पुलिस उसका चालान काटती है, तो उसमें गुस्से वाली क्या बात है। चाहे मैं ना जाऊं, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे एमपी हो, अगर कहीं पुलिस खड़ी और हेलमेट नहीं लगा तो रोकेंगे। नरेश गेरा को दफा करो, दफा करो, दफा करो। धान की सरकारी खरीद शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। धान की सरकारी खरीद शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। मोदी गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी शुरू करो, शुरू करो। सीआई नरेश गेरा को दफा करो, दफा करो, दफा करो। सीआई नरेश गेरा को दफा करो, दफा करो, दफा करो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਠੰਡ अभी आज हमने थाने का घेराव किया था। जैसे ही हम थाने से निकले तो हमें पता चला कि बीजेपी के कुछ पदाधिकारी सर्किट हाउस में आए हुए हैं, जिनमें कैलाश मेघवाल है, जिन्होंने किसानों पर झूठे आरोप कई बार लगाए हैं और पहले भी किसानों के साथ उसकी तकरार हो चुकी है। किसानों की चल रही सभा में यह बंदा पहुंचा था और किसानों पर झूठे केस बनाए गए। उसके बारे में हम सुना तो हम गेट पे पहुंचे। यहाँ में डीएसपी साहब ने बताया कि कोई चेयरमैन साहब जो संवैधानिक पद पर है वो पहुंचे हुए हैं। हम गेट से साइड में हो गए क्योंकि हम भी संवैधानिक पदों की कदर करते हैं। तो हमने कहा वो जाएंगे, निकलेंगे, हम उनका स्वागत करते हैं, साइड में खड़े रहेंगे। लेकिन जो कैलाश मेघवाल या बीजेपी के अन्य कोई पदाधिकारी जो लीडर आए हुए हैं उनको हम यहाँ से नहीं निकलने देंगे। हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब जितनी देर तक मर्जी रुकें, हम तो यहाँ खड़े हैं गेट के आगे। हम 4 तारीख से बैठे हैं, दिन और रात आंदोलन में लगे हुए हैं। हमारे लिए कोई टाइम वाला तो है नहीं कि रात है या दिन है, क्योंकि 24 घंटे हम तो आंदोलन में हैं। हमारी कोई मान नहीं रहा है, तो हम जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम आंदोलन है। राजतंत्र स्थापित कर दिया है। अगर मोदी बात करे तो उससे तो भले ही किसान कर ले कि वो कुछ बताए। बाकी तो इनके जो मंत्री हैं, कुछ भी मंत्री संतरी, उनके तो कुछ हाथ में है नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ अंधभक्त बने हुए हैं। जो तीनों काले कानून हैं, हम कह रहे हैं कि उन पर चर्चा करो। अभी कैलाश जी मेघवाल बैठे हैं, सामने आके बैठे, हम आराम से बैठेंगे, वो चर्चा करें हमारे साथ। लेकिन कहीं भी ये लोग चर्चा करने को तो तैयार है नहीं। चर्चा तो करनी नहीं कि तीनों काले कानून क्या है, उनके बारे में ये लोग जानते ही नहीं हैं। हम 10-10 महीने से बैठे हैं, एक एक पॉइंट काले कानून का हम लोगों ने सुना है। और जो लोग हमारे साथ नहीं थे वो जैसे जैसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, वापस लो, वापस लो, खाली जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, मोदी सरकार हाय 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 हाय, गवर्नमेंट हाय 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 हाय, मुर्दाबाद, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो,
ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਕਿਨੇ ਸੀ सरकार मुर्दाबाद 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 नेतारी सरकार हाय हाय इनकलाब जिंदाबाद 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 किसान नेता पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद हथियारी सरकार 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 पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन शाह बेगवाल मुर्दाबाद गड्ढे पर लगे गड्डी में पीछे नहीं जाना पिछले गेट नहीं जाना हमारे लक्ष्य पड़े हैं उस पर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आपके भी अधिकारियों ने एडीएम मैडम हमारे साथ जो वादा किया था वो प्रशांत जी कोशिश खड़े हैं, इनसे पूछ लो हमसे बढ़िया बता देंगे। शनिवार को हमारी मीटिंग हुई, इन्होंने कहा आप गैरा को छोड़ दो, आज ही एफसीआई के अधिकारी आएंगे, जो धान आपका गेट के आगे पड़ा आज खरीदेंगे, बाकी कल संडे सोमवार को हम खरीद शुरू करवाएंगे। उस दिन हमें कह देते 15 दिन लगेंगे 20 दिन लगेंगे, लेकिन इन्होंने एक ही शर्त रखी कि आप नरेश गैरा को छोड़ दो, 7 दिन छुट्टी पर भेज देते हैं। हम सभी ने हाथ जोड़ के वो फैसला स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रशासन ने हनुमानगढ़ में आज तक इतना बड़ा धोखा नहीं किया है जो आपके रहते हुए यहाँ हमारे साथ धोखा हुआ है।
धान अभी वहीं पड़ा है। और ये जो अभी कैलाश मेघवाल की बता दूं, इसकी गाड़ी में जो लड़का बैठा है उसने पहले हमारे एक लड़के के रोड मारी थी पीलीभीत में, लेकिन हमने केस दर्ज नहीं करवाई। प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है, कहीं भी प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। कैलाश मेघवाल ने झूठे SC ST के केस हमारे साथियों पे लगाए, झूठे केस। हम तो बीजेपी का विरोध करेंगे सर, बस कर सकते हो सर। दूसरी बेनती ये है, 4 तारीख को हम कोई गुंडागर्दी करने नहीं आए थे, आपको ज्ञापन देना था। हमारी लाशें सड़क पे पड़ी थी, उसके सिलसिले में आप गए और आपके प्रशासन ने हमारे लाठियों से कूटा। हमारा उसमें क्या था जी, कसूर क्या था हमारा? वार्ता अपने 1.5 घंटे अपने साथ में हुई थी। सर उसमें हम निकला क्या? यहाँ से गैरा को दफा नहीं करोगे, हम आंदोलन कल से और करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उस अधिकारी को हमारे सर हम ऐसे जर लेंगे कि जो हमको लाठियों से मारे और हम जिसको जर लेंगे। आज तक हनुमानगढ़ पुलिस का जो रवैया रहा है, आपको और बताऊं, इतना बढ़िया इतिहास शायद किसी जिले में नहीं होगा जैसा हनुमानगढ़ की पुलिस कर रहा है। लेकिन इस बंदे ने पूरे हनुमानगढ़ का माहौल बिगाड़ दिया। ये हालात है हमारे। 10,000 लोगों का भी धरना प्रदर्शन होता था, तो ऐसी कभी बात हुई नहीं। ये सर हर व्यक्ति से अपन बात करने पाएंगे। बात सुनो जी, बात सुन लो, बात सुनो। आपके इस आंदोलन की वजह से बड़ी मुश्किल से 15 साल बाद अपने को परमिशन मिली है। अब देखो, जो अपन कहते हैं, मैंने उस कमेटी को भी कहा था कि मैं कल सुबह खरीद नहीं कर पाऊंगा। झूठा आश्वासन देने का मेरा वो उद्देश्य नहीं है। जो ADM मैडम ने उसी रात को ही ज्वाइन किया था, पता नहीं था कि क्या खरीद प्रक्रिया होती है। ऐसे नहीं होता है। नहीं सर, वो गलती किसानों की नहीं है ना सर, वो मेरी भी नहीं, किसानों की गलती नहीं सर। अरे पर्टिकुलर को बचाने के लिए, गैरा को टाइम लगने के लिए। सर गैरा को क्यों बचाया जा रहा है? गैरा को बचाने के लिए अब गैरा ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई? क्या हमारे पास और एफिसर नहीं है जिले में और कहीं भी? सर मेन बात है, लक्ष्य वास्तव में किया है, वीडियो में देख रहे हो आप, सर क्या कारण रहा है उसने हटाने का? मुझे बताओ कि अपन पहले आप आंदोलन करते थे तो कलेक्ट्रेट के सामने आराम से 10,000 की भीड़ थी, तो भी आप भाषण करते थे, फिर मेरे को ज्ञापन देते थे। उस दिन अपने को ट्रैक्टर से अचानक से गेट के ये दुकानदार ट्रैक्टर यही तो बुजुर्ग थे साहब। नहीं सुन पाएंगे। एक बोलते सर, ट्रैक्टर बंद था, आप वीडियो में देख लो। अगर ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ तो हम ये अभी अपने घर पे चले जाएंगे। बंद है ट्रैक्टर पर, ये बुजुर्ग ट्रैक्टर पे बैठा, इनको पीटा गया है। 20 पीटा गया। अभी उम्मीद है सर, उसको बदल दो, हमारी धान की खरीद चालू करवा दो, करवा सकते हैं आप। 2-4 दिन में करवा दो। अपन खरीद जो है ना, खरीद में जो FCI को टेंडर में 5 दिन का 7 दिन का समय लगेगा, वो तो लगेगा समय। सर वो 26 बोल दिया जी, वो तो 1 नंबर को आएगा। 1 नंबर तक हमारा धान नहीं रहेगा। बहुत लंबे बार 1 नवंबर तो नहीं है, जो टाइम लगता है ना, उसमें टाइम लगना पड़े। मेरे घर की बात नहीं है ना। नहीं सर, 26 से पहले करो सर, आप उसकी टेंडर जल्दी करवाओ सर। ये तो बहुत मैं तो जितने दिन काट सकता हूँ ना FCI के, उतने दिन टेंडर होते हैं, यही जल्दी करवा दो सर। अब आप बताओ, ऑनलाइन पोर्टल पढ़ लो। ऑनलाइन पोर्टल पे जो कल डाला है 11 तारीख वाला, जो 13 तारीख को डालना था उसको हमने 11 को डलवा दिया। सरकार ने हमसे रेट, 1 मिनट रुको, तो सरकार ने अपने से रेट पूछी, तो रेट पूछी 12 तारीख को, यानी कल पूछी। मैंने आज सुबह ही आज मेल कर दिया कि ये रेट हमारे लिए अप्रूव्ड है। जो काम 5-5, 7-7 दिन में हो सकते हैं, वो अमन 2-2 दिन में करवा रहे हैं। बहुत दूर है साहब। अब जो टाइम लगेगा प्रयास करो ना, तो सर हो सकता है। देखो, प्रयास आप लोगों ने किया और मैंने किया, तब जाकर अनुमति मिल गई। कितने सालों के बाद मिली है? बहुत प्रयास किया सर, जल्दी का प्रयास करो। आपने प्रयास बहुत किया सर, आपका धन्यवाद। जल्दी का प्रयास करो सर। कि जब किसानों के लट पड़े तो स्टेट गवर्नमेंट ने लेटर भेज दिया। उससे पहले आप भी लेटर भेज रहे थे, हम भी मिल रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं। और लाठी चार्ज की बता दूं साहब, हम अब गेट तोड़ के वहाँ चले जाते, हमें पिटो जो मर्जी करो। जो अंदर चले गए हमारे साथी, उनके लठ लगे, हमें कहीं दुख नहीं है। वैसे तो आपको बता दूं 20 साल मेरे को भी हो गया आंदोलन लड़ते हुए। हम पहला गेट क्रॉस करके, दूसरा कस के, तीसरा शीशे वाला गेट क्रॉस करके भी अंदर 100 जाने बैठे हैं। लेकिन यहाँ हनुमानगढ़ का एक इतिहास मैं पहले भी बताया कि बहुत बढ़िया रहा है। अंदर चले गए 15-20, सिर्फ 35-40 किसान थे वहाँ, मजदूर थे, उनके लठ लग गए, कोई बात नहीं। ये हमारे ये बुजुर्ग देखो ट्रैक्टर पे, उस टाइम बंद ट्रैक्टर बंद था, लट्ठों से। आपका जो CI गैरा है वो लट्ठों से पीट रहा है। देख लिया मैंने, क्या ये देखा हुआ है। और वीडियो में भी वैसे सही देखें तब तो ज्यादातर जो लट हैं वो ट्रैक्टर पे पड़े हैं। चलो मान लेते, चलो मान लेते सर, मैं मान लेते, मुझे नहीं पड़े, मैं मान लेता हूँ। ये डंडा देखो सर, ये डंडा देखो कहाँ पड़ा, ये डंडा देखो सर, ये देखो निशान। किसान के खिलाफ बोल रहे आप भी सर? नहीं सर, किसान के खिलाफ बोल रहे हो आप। ये निशान देखो सर, ये देखो, ये देखो निशान इनके। अरे मैं शरीर बड़ा बड़ा सर, मैं वो कोई बात नहीं, उसका दुखी नहीं है।
मैं नहीं होता तो मैं लिखता ही नहीं कागज। मैं सर वो अलग बात थी जब आप सर, जो ये नेस करेगी बस बात है ना, आप सब उसमें कर रहे जब आप गेट तोड़ते ना उस दिन लिखता, फिर तो मैं डर के कारण मैं उस दिन से आपका वो कर रहा हूँ बात ठीक है साहब कि भाई आप तुम्हारे साथ बात वो कर रहे हैं। धन्यवाद, जल्दी करवा फिर भी वो हाँ ये बात लगी है। जल्दी करवाओ सर। जो टाइम 1 तारीख वो दे रही है भारत सरकार, उससे भी कम ला रहा उससे हाँ जल्दी मेरी कोशिश है कि आप कितना भी कम समय करके 25 करे तो उसे 23, 22, 21 ला रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूं। हमारी एक एक स्टेप के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कितना समय बचा सकते हैं, लेकिन पोर्टल पे जो मजबूरी है ना हमारी कि भाई इतना टाइम उसके ऊपर लगेगा, वो लगेगा 7 से 8 दिन का जो सर लोगों को गुस्सा है सर, उसको बदल दो सर। क्या बहुत बड़ी अफसर हैं सर, क्या फर्क पड़ता है सर, कोई 10-20 दिन को लगाएगा बाद। भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हाँ जी मर सकते हैं, लेकिन गैरा सिटी थाने में नहीं रहेगा। हमें अब मरना आप देख मंजूर लो भी है, हमें मरना मंजूर है यहाँ पे साहब। किसान जरूरी है, जो आपकी इच्छा है वो कहीं भी ड्यूटी कर सकते, हमने कहा था लाइन हाजिर कर दो, ट्रांसफर कर दो, जो मर्जी करो। करो सर आप अपने हिसाब से ना, कैसे भी करो सर आप अभी देखो इस तरीके से आपसे उम्मीद है हमें। थाने का घेराव था और वापस पड़ाव पे बैठ जाओ, कल आप नहीं जा रहे हैं सर, नहीं सर एक मिनट, ये आज जो क्लास में सर विरोध की बात कर रहे हैं, लगभग 11 महीने हो गए और 700 से ऊपर किसानों ने उनको शहीद कुर्बान हुए हैं सर। उनके विरोध में आंदोलन के खिलाफ बोल रहे हैं नेता। पीली बंगा पीछे जो घटना हुई, किसान झूठे मुकदमे इन्होंने करवाए, उसके विरोध में हम पहुंचे हैं कि जो ये भाजपा के नेता हैं किसानों के विरोध में बोल रहे हैं, आंदोलन के खिलाफ में बोल रहे हैं, तब सर आए हैं। सर आज विरोध प्रदर्शन है हमारा और हमें आपसे बैठेंगे। देखो मैं बताऊंगा, आपने करना विरोध आपने किया, लोकतंत्र की यही अच्छी विशेषता है, आप करो विरोध और हो गया विरोध, उनका मैसेज चला गया। अब अपन रास्ता नहीं रोक सकते, किसी कानून हाथ में कभी भी नहीं लेना चाहिए अपने। अब आप चलो अब समझो, अपन डिस्कस करेंगे इस मैटर। अब आप सर आप मैं हूँ आपके साथ। ठीक है सर, धन्यवाद। सर आपकी मान के जा रहे हैं, आपको जो बताया ना वो हमारी मान लेना। चलो भाई, चलो यार तो